Okay. So, last class में we have discussed about what is vector actually, physically what it means, and I just gave you the brief of the tensor. But आज थोड़ा टेंसर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? So, so you will get a feel like how viscous tensors are there in the problem and Navier-Stokes equation को कैसे लाते हैं वो सब बाद में करेंगे, but these all of these fundamental things are needed to understand the Navier-Stokes equation. And जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, it will directly help you in your transport phenomena course that will be there in your final year. ठीक है, so largely यही सब सेम चीज होंगी in your transport phenomena course. So ठीक है, तो आज we will what we will be going to discuss is first we'll discuss the span and the basis vector. Then we'll discuss about tensors in detail with physical significance. Then we'll discuss dot product and its duality. Okay, we'll discuss all of these topics. So, so we'll start with what is unit vector. So, for example, if you are having a Cartesian coordinate system, okay. So, for example, this is x and this is y. So, the vector pointing in x direction and has a magnitude that is 1, and we usually denote it using I at, or maybe I will use ex because I want to use the script to do more generalized things. Ex is also a unit vector. You can denote either I cap or ex, whatever. Similarly, here the vector pointing in the y direction, which has again a length of 1, and these are the unit vectors. So the unit vectors are defined as, so the vectors which are having unit length and are pointing in a particular direction, then these vectors are called to be a unit vector. Unit vector are usually important because whatever the vector we will be going to define, for example, you are defining some vector this, which has, let's say, it is coordinates 2 and 2. So we can write this vector as, so for example, here
it is 2 in this x direction and similarly 2 in y direction. So basically we can write this 2, 2, which is my v vector, as 2 ex hat and plus 2 ez hat. What does this means? That we are scaling this unit vector twice, like 2 से so this coordinate is nothing but अगर इसको 2 ex लिख दोगे, we can write this to be a 2 ex, right, in this direction. So uh, this component of this vector in this direction is 2 ex, in this direction is to be 2 ey. Okay, so we can write like this. Basically here ex and ey are the basis of the xy coordinate system. Therefore, when we describe vector numerically, it depends on an implicit choice of the basis. ठीक है. So, for example, you are having this coordinate system, and its basis means you can express uh, the vector, for example, v, in this Cartesian coordinate system in terms of its basis vector, and the basis vector are the unit vectors pointing in those coordinate system. You can have a different Cartesian coordinate system. For example, I can say like I have a different Cartesian coordinate system which is different from x and y. It should be like this. It may not be orthonormal to each other. It has some other angle with them. So for example, this is my new coordinate system where I am calling as cubic x prime and y prime, and I'm calling the basis the unit normal ex prime hat and ey prime hat, and I can describe my vector uh, in this coordinate system. I can describe my this vector in this coordinate system like uh, whatever. If it is 2 2, so it can be 2 ex hat x prime hat plus 2 ey prime hat. See? So bases are those vectors which are defining the basically the coordinate system. Okay, ठीक है. इसमें किसी को कोई इशू है? No, sir. Okay, No, sir. ठीक है. So when you scale any two vectors and add them, it is called to be as linear combination of those two vector. ठीक है.
So for example, in the case when you are having xy and you are having two vectors, for example, u and v, okay? So I can describe my third vector to be the linear combination of these two vectors in a way that w can be written as u alpha times u plus beta times w, okay? And so why we are saying the linear combination, because whatever like you can whatever so for example, if you take alpha u and you will change beta. For example, I will take my alpha to be 1 and I will take uh, beta. So the resultant of u plus v, if I take alpha and beta to be 1 1, so it will, so the resultant will come like this, right? So the resultant will come like this if alpha and beta will be 1. Okay. W is equals to, so this is the W. This is my W. So this is my resultant. Okay. So this is my resultant when alpha and beta are 1. For example, I will keep my alpha to be 1 and I will change beta. So if I change this, like beta to be, let's say, I will do 2, 3, or 4. So whatever the values I take, I will just expand this and you will see that this vector, so for example, uh, 2v will be like this. So 2v will be like this, right? Now the resultant will go from here to somewhat here, something like this. ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस तो ऐसे ही रहेगा ना, ये तो ऐसे ही रहेगा. So what you will see is that if you change just one of the one of the if you change the scalar of one of the vector, then you will see it will go like, so it will go like this, it will go like this. So it, you will see a line. So whatever, so you will see W is changing in a particular line. So that's why we call this to be a linear combination of these two vectors. Okay, so W is a linear combination of these two vectors, and all the values taken by this W for different alpha and beta. So the set of all the set of all the linear combinations of these u these two vectors these two vectors is called as span. ठीक है, so this is the definition of span.
इसमें किसी को कोई डाउट है? व्हाट इज स्पैन, लाइक आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पैन? No, sir. हाँ, नो सर। No, sir. ओके। तो ठीक है, सो थ्री डी में आते हैं। तो थ्री डी में क्या होगा? व्हाट इज स्पैन इन थ्री डी? सो थ्री डी में लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग the coordinate system like this. I can maybe दीपाली कहाँ गई? आई थिंक दीपाली है नहीं है, तुम लोग सर के साथ नहीं बैठी? डिस्कनेक्ट। हाँ, सर डिस्कनेक्ट हो गया है। अच्छा, ठीक है। सो सो थ्री डी में लेट्स से यू आर हैविंग थ्री वेक्टर्स, ठीक है। सो यू आर हैविंग थ्री वेक्टर्स u, v and w. So what I want to say in 3D is, for example, if you are having a three vectors, then in 3D you will be having a so for example, example you are having two vectors like this, ठीक है। तो थर्ड वेक्टर ऐसे जा रहा होगा, थर्ड वेक्टर ऐसे है। फ- तो अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल, दिख रहा है ना स्क्रीन, मतलब मेरा यस सर। पिक्चर? हाँ। सो जैसे तीन वेक्टर्स हैं लाइक दिस, एक मिनट। ठीक है, अभी दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो मेरे जो थ्री डी में मेरे तीन वेक्टर है, ठीक है। दिख रहा है पेन? पेन दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो थ्री डी में मेरे तीन वेक्टर है, ठीक है। तो दो, फॉर एग्जांपल दो वेक्टर एक सॉर्ट ऑफ एक ही प्लेन में है, और तीसरा वेक्टर किसी और प्लेन में है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मुझे एक वेक्टर देगा, मतलब जो एक प्लेन में है। एंड देन जब उसका एक और इसका जो ये तीसरा वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट करूंगा, देन आई विल गेट थर्ड वेक्टर। एंड सो व्हेन आई विल गेट थर्ड वेक्टर, ठीक है, मतलब जो इन तीनों से मिलके फाइनली एक जो चौथा वेक्टर बनेगा, ये ब्लू पेन जो मैं बता रहा हूँ। सो इट विल टेक एनी डायरेक्शन, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंड्स ऑन दिस कॉम्बिनेशंस की इसमें, मतलब ये कितना, ये कितना, ये कितना। आई विल बी हैविंग अ स्पैन, मतलब कंप्लीट स्पैन। सो ये जब भी पॉसिबल होगा, मतलब ये जो थर्ड वेक्टर है, इसका स्पैन, मतलब ये जो मेरा फाइनल फोर्थ वेक्टर आ रहा है, ये थ्री डी में स्पैन तभी करेगा, मतलब इसके ऑल द पॉसिबिलिटी इन थ्री डी तभी है जब जो तुम्हारा जो थर्ड वेक्टर है वो इनके साथ कोप्लेन, मतलब इनके साथ प्लेन में ना हो। दिस शुड नॉट बी कोप्लेनर, ठीक है। अगर ये कोप्लेनर हो गया तो क्या होगा? अगर ये वेक्टर कोप्लेनर हो गया, मतलब इंस्टेड ऑफ इन किसी और डायरेक्शन में, मतलब आउट ऑफ प्लेन नहीं हुआ और एक ही प्लेन में आ गया, मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आ गए, तो क्या होगा कि इसका रिजल्टेंट एक आएगा, इसका रिजल्टेंट एक आएगा, एंड यू विल बी हैविंग अ
you will end up finding the resultant in your plane only, in that same plane only. ठीक है, एक ही प्लेन में तुम्हारा जो भी होगा रिजल्टेंट होगा, एंड यू विल नॉट बी गोइंग टू गेट एनी थर्ड डायरेक्शन. सो जो तुम्हारा स्पैन होगा वो टू ही होगा, मतलब 2D में ही दिखेगा तुम्हें. सो अगर तुम्हें देखना है कि 3D में, मतलब स्पैन को ऐसे बोलते हैं कि मतलब अगर ये कुछ भी ऐसे रैंडम ले रहा है विच इज नॉट इन प्लेन विद दिस, मतलब इसके प्लेन में नहीं है, मतलब को प्लेनर नहीं है तीनों वेक्टर्स, देन ओनली यू विल बी हैविंग अ स्पैन. मतलब जिस 3D में स्पैन तभी बनेगा जब ये वेक्टर इस बाकी दो के प्लेन में नहीं होगा. ठीक है, तो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. बेसिकली क्या होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, इन केस in case third vector is already sitting on the span of other two vectors, so we can write that third vector as a linear combinations of those two vectors. So I can write W to be alpha U plus beta V अगर मेरा ये कोप्लेनर सिस्टम है. ठीक है, एंड these two vectors are here to be a linearly dependent vector. कई बार क्वेश्चन पूछता है whether the vector is linearly dependent or independent. So in case if W we cannot write equal to the alpha U plus beta V, then these are not a linearly dependent vector. These are linearly independent vector because it is giving a span and that third span will be there. So अगर अपने पास तीन वेक्टर होते हैं, so to check the coplanarity, what we do is we will calculate the determinant of those three vectors. For example, if you are having U to be U1 E1 hat plus U2 E2 hat plus U3 E3 hat and V to be V1 E1 hat plus V2 E2 hat plus V3 E3 hat and W to be W1 E1 hat plus W2 E2 hat plus W3 E3 hat. So if my this determinant U1 U2 U3 V1 V2 V3 and W1 W2 and W3 are equal to 0, that means this case is satisfied. Otherwise, if not equals to 0, then this case is satisfied. Okay, so in order to know whether the vector are linearly dependent or independent, we do this. Okay, so finally, we'll conclude with the definition of the basis. The formal definition of basis is the
basis of the vector space is a set of linearly independent. So that's why I want this concept to let you know that to explain the basis. So basis is the set of vector which are linearly independent. Right? So they three vectors or four vectors, whatever the vector, they will create a, they are adding the new dimension. That's why they're creating a new span. Okay. That spans the full space. ठीक है. इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, तो ये क्लियर है, मतलब स्पैन बेसिस, बेसिस एकदम क्लियर है ना, मतलब बेसिस में, मतलब आई डोंट नो तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, पहले ये पढ़ा है क्या बेसिस और स्पैन? एक्चुअली बेसिस No, इज sir. important, that's why I describe this concept of span. Linearly dependent independent समझ में आया? हाँ, राधिका, Yes. यश, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ठीक है, we'll start with the stress tensor. तो मैंने टेंसर का बेसिक बताया था कि मतलब if we are having a zeroth order tensor, then we call it to be scalar because it has no direction. If it is first order tensor, then it is vector because it has a direction and a magnitude. Magnitude is anyway there, but it has one direction. And usually in fluid mechanics or the transport phenomena, we encounter second order tensor like the stress tensor in fluid mechanics. So second order tensor means, so you will see the example of second order tensor, but it means that it has more than one direction. And what are those two directions? We will discuss about that. Okay. ठीक है. So I start with by considering an example of uh, so ठीक है. So I start by considering an example of 1D flow, 1D quake flow. I hope ये बेसिक्स तो पता होगा तुम्हें. तो इसका वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा आता है. ठीक है. Where this plate is moving with some velocity u. ठीक है. And this is my y direction, this is my x direction. This is my y direction and this is my x direction. So हमने पढ़ा था ना कि stress tensor for the case of Newtonian fluid,
So the stress tensor in xy is given as mu del ux dux by dy, and this is basically a nothing but the force per unit area, force per unit area acting in x direction at a surface at a surface with unit normal in y direction, at a surface with outward unit normal in y direction. So, for example, if I am saying about uh, any surface, so any surface is characterized by its unit normal. So, uh, for example, if I take in 3 dimension, I will say x1, x2, and x3. So, if I take this, for example, I will take this plane, which is lying in the x1, x2 plane. So if I have to say about this surface, if I have to characterize this surface, then I can characterize this surface by saying the fact that it has, this is the surface which has unit normal in x3 direction. ठीक है. So this surface has a normal in the x3 direction. So this is that surface which has a normal in x3 direction. For example, I will take the surface in this plane, for example. ठीक है. So what do you think? Uh, how do you characterize this surface? What you will say? Huh? Hello. Yes, sir. कैसे बोलोगे ये सरफेस के बारे में? हम्म. कुछ तो बोलो. हेलो. राधिका. राधिका. Yes, sir. जो मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग इस सरफेस को तुम कैसे कैरेक्टराइज करोगे? बिनी. अंशिका. Yes, sir. हाँ, जो ये सरफेस बताया
इसको कैसे करेक्टराइज करोगे? अरे मतलब कुछ तो बोलो। या तुम लोग लेक्चर अटेंड सही से नहीं कर रहे क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन समझ में आया? सुयश, नहीं सर, क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ ये सरफेस बनाया मैंने, यस सर। जो कि x1 x3 प्लेन में है। टेल मी हाउ डू यू करेक्टराइज दिस सरफेस। मैंने बताया था कि जो ये x1 x2 प्लेन में सरफेस है, यस सर। if you draw the unit normal to this surface, you will see that because it is lying in the x1 x2 plane, so the unit normal, outward unit normal in this case is in the x3 direction. So सर I can इसकी say that डायरेक्शन this अंदर की तरफ रहेगी। this surface can be characterized as the surface which has, so I can, so this surface can be characterized as the surface which has unit normal in x3 डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं सेम इसके लिए पूछ रहा हूँ, ये x1 x3 प्लेन में है। हाउ डू यू राइट दिस डेफिनेशन फॉर दिस सरफेस? बिनी, बताओ। सर x2 की साइड जाएगी क्या, अंदर की साइड इसमें? बिल्कुल, तो ये x2 की साइड जाएगी। यस सर। सो हाउ कैन यू से दैट दिस सरफेस हैज अ डायरेक्शन? यूनिट नॉर्मल इन x2 डायरेक्शन। सो यूनिट नॉर्मल मेरा इसके लिए ये होगा e3। सो दिस इज माय बेसिस वेक्टर यूनिट नॉर्मल, सो दिस इज e3 एंड इन दिस केस इट इज e2। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सो इस केस में जो मैंने बताया तुम्हें न्यूटन फ्लूइड में, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं ये इस दिस इज माय सरफेस, ठीक है, ये मेरा सरफेस होगा। अगर मैं प्लेट को थोड़ा 2D में देखता हूँ तो ये मेरा, मतलब थर्ड डायरेक्शन में भी देखता हूँ तो थोड़ा ऐसे होगा ना सरफेस, मतलब ऐसे सरफेस होगा। तो ये जो सरफेस है इसका जो नॉर्मल है वो किस डायरेक्शन में होगा? फॉर एग्जाम्पल इट दिस सरफेस इज इन वाई जेड प्लेन, तो इस सरफेस का मेरा जो नॉर्मल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अंशिका, Yes, sir. किस डायरेक्शन में होगा इस सरफेस का यूनिट नॉर्मल? हेलो, Sir, right side होगा। अरे सरफेस ऐसे है मैडम, ऐसे, ये सरफेस है मेरा, तीसरा डायरेक्शन अंदर की साइड है जेड, तो किस डायरेक्शन में होगा? Sir, upward। ई एक्स ना, Yes, मेरा sir. नॉर्मल क्या होगा? ई एक्स, राइट। ठीक है, और जो मेरी फोर्स लग रही है, तो मैंने ये जो लिखा है यहाँ पे दो चीजें, एक फोर्स का डायरेक्शन और एक सरफेस का डायरेक्शन। तो सरफेस कौन सा है जिस पे फोर्स लग रही है? ई एक्स डायरेक्शन में। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? तो फोर्स इज एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, राइट। सॉरी, या फोर्स इज एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन। उल्टा लिख दी क्या मैंने? उल्टा कर दिया इसको थोड़ा, एक मिनट। यूजुअली ऐसा होता ना, ई एक्स वाई, एंड दिस इज ऑल्सो ई वाई, एंड दिस इज ऑल्सो रिटन करेक्टली नाउ। सो फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंड ऑन द सरफेस वेयर द यूनिट नॉर्मल इज इन द वाई डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया क्या ये? यस सर। यस सर। राधिका,
Yes, sir. क्या समझ में आया, एक बार बताओगी? इस फिगर के हिसाब से ये सही लिखा है क्या, और क्यों लिखा है, कैसे लिखा है? क्योंकि इसके बेसिस पे ही फ्लूइड मैकेनिक्स के आगे सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, और गेट में डायरेक्टली क्वेश्चन तो ऐसे पे आ जाता है ये टेंसर पे कई बार, वेट फ्लो पे। गई अंशिका। अंशिका है ना, अंशिका बताओगी क्या समझ में आया? हेलो राधिका, तुम हो? अरे यार हाँ ना तो बोल दो यार, आवाज आ रही है? विनी तुम हो, विनी? यस सर। बताओ क्या समझ में आया, बाकी लोगों को समझा दो एक बार। अरे मतलब इट्स जस्ट अ डिस्कशन ना, मतलब तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। आई वांट टू नो कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। ओके। बताओ फिर क्या समझ में आया। हेलो, हेलो बेनी, यस सर। बताओ ना। सर यस सर नहीं, बताओ यस सर। राधिका, अरे सर ये तुम। आपने ऊपर वाला जो डायग्राम बनाया है इसकी हाँ जो सर वो जो सरफेस होगा वो हाँ सर उसको ऊपर की तरफ रहेगा ई वाई, और जो फोर्स रहेगा वो एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, जो ठीक ऊपर है। वाला आपने डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से सर। हाँ, सर तो मेरा जो स्ट्रेस टेंसर है वो ऐसे डिफाइन क्यों है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेस टेंसर, मतलब हाउ यू आर रिलेटिंग दैट? ये जो बोला ये तो सही बोला कि हाँ नॉर्मल इस डायरेक्शन में, ई वाई ऐसे है, ठीक। ठीक है चलो, मैं आई थिंक बिन्नी समझ में नहीं आएगा तुम बाकी लोग को? नो। हाँ, अंशिका तुम्हें समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस टेंसर? अंशिका, राधिका, अरे बोल तो लो भाई, कुछ हो थोड़ी रहा है यहाँ पे। नो सर। थोड़ा समय क्या, क्या बोल रही हो? अरे हाँ ना तो बोल, मतलब कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब टीचर थोड़ी है, ऐसे नॉर्मल से मैं पढ़ा रहा हूँ, डिस्कस कर लो, क्या जा रहा है, समझ में आ जाए, यस सर। मतलब टाइम दे रहे हो तो समझा करो ना, मतलब जब तुम लोग भी टाइम दे रहे हो मैं भी टाइम दे रहा हूँ और तुम्हें समझ में नहीं आया तो क्या ही सेंस है मेरे पढ़ाने का? एक तो अनम्यूट करो जरा अपने आप को सब लोग। राधिका, राधिका है यहाँ पे? सर रिपीट कर दो। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद आई विल आस्क, ठीक है? तो मैंने बोला कि मैंने एक एग्जांपल लिया नॉर्मल, जिसमें कि कोएट फ्लो है, जिसमें फ्लूइड इज फ्लोइंग। ठीक है, मैं दोबारा से फिगर बनाता हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक फ्लूइड, द फ्लूइड इज फ्लोइंग, ठीक है? तो मेरा जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज बिकॉज आई हैव अप्लाइड अ वेलोसिटी, मतलब मैं इस प्लेट को मूव कर रहा हूँ विद सम वेलोसिटी u इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? और मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो ऐसा है यहाँ पे, इन दिस डायरेक्शन इट इज x, इन दिस डायरेक्शन इट इज y, ठीक है? अब मैंने बोला
कि आई वांट टू नो माय दिस स्ट्रेस टेंसर which is txy. ठीक है, so how txy is defined and on which surface txy is acting. So txy is acting on the surface whose unit normal is in the y direction. So मेरा ये सरफेस है जिसका यूनिट नॉर्मल मेरा, इससे अगर नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल यूनिट नॉर्मल, ये मेरा ई वाई, ये वाई डायरेक्शन में है। इस सरफेस पे जो ये फ्लूइड फोर्स लगा रहा होगा, मतलब यहाँ पे पूरा फ्लूइड है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लूइड जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जस्ट एडजेसेंट टू दिस, मतलब फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स किस डायरेक्शन में है, मतलब इधर प्लेट एक्स। पे मूव हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे हैं, और किस सरफेस पे लगा रहे हैं जिसका यूनिट नॉर्मल ई वाई में है। सो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन एट अ सरफेस विद आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको टेंसर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो केस हैं, एक तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि कौन से सरफेस पे लगा रहा है, मतलब जो तुम्हारा ये सरफेस है, इसका जो यूनिट नॉर्मल है वो ई वाई है, ठीक है। मेरा सरफेस ऐसा भी हो सकता है, मतलब आई कैन हैव सरफेस विच हैव यूनिट नॉर्मल E2 E3 और ई, मतलब किसी और डायरेक्शन में, लेट्स से मैं यहाँ पे एक सरफेस ले लूँ, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब अभी इस एग्जांपल में तो सिंपल ही है, ये 2D में है एक्स और वाई, तो यहाँ पे तो ई वाई में ही मेरा एक सरफेस है, मतलब ई वाई में नॉर्मल है जिस इस सरफेस का, और फोर्स मेरा एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन तुम्हें समझ में आया कि दो डायरेक्शन है, देयर आर टू डायरेक्शंस। सो इन टेंसर in second order tensor there are two directions, and those two directions are, one is for the, हमारा जो एक डायरेक्शन है that is for the surface, and another direction is the direction of force, ठीक है। सो इस दो डायरेक्शन की वजह से we use stress sensor in fluid mechanics, and this is because क्योंकि हमेशा there are forces acting on one or the other surface. So we have discussed about the surface forces, right? So this is whenever we talk about the surface forces, we need to know the characterization of the surface. तो हमने जब करेक्टराइजेशन के बारे में बताया सरफेस का, तो कोई भी सरफेस कैसे करेक्टराइज होता है, लाइक इट डिपेंड्स कि उस सरफेस का नॉर्मल किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड नॉर्मल किस डायरेक्शन में। सो फॉर एग्जांपल, ये मैंने सरफेस बताया था जो कि x1 x2 प्लेन में है, इसका नॉर्मल E3 डायरेक्शन में, तो ये अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो आई कैन डिफाइन इन अ वे दैट, फॉर एग्जांपल इफ आई पुटिंग दिस फोर्स, एक मैंने फोर्स लगाया लेट्स से x2 डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स x2 डायरेक्शन में। अब मुझे लिखना है कि इसके लिए मुझे लिखना है फोर्स मेरा x2 डायरेक्शन में है, तो मेरा x2 हो गया, एंड मेरा जो सरफेस है जो कि करेक्टराइज हो रहा है E3 से, मतलब x3 डायरेक्शन से, तो x2 x3। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे ये इन टर्म्स ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड लिखना है, तो आई कैन राइट इट लाइक म्यू डी यू x2 बाय डी एक्स एक्स। थ्री, राइट। अभी समझ में आया? यस सर। तो बता दो फिर एक बार। सर ये आपने 2 डायमेंशन के लिए बताया जिसमें कि 2 डायरेक्शंस हैं, एक एक्स एक वाई, और हमें इसमें मतलब नीचे एक सरफेस है जो अच्छा ही बोल हमारा जाओ, थोड़ा जनरलाइज वे में बोलो कि मतलब दो डायरेक्शन कौन कौन सी है। 2 डायरेक्शन है, एक सरफेस और एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ। इसमें हमारा और ये जो हमारा फ्लूइड है इसकी वेलोसिटी u है जिससे ये मूव कर रहा है। हम्म।
तो हमें इसका जो टेंसर लिखेंगे हम, तो उसे न्यूटोनाइन फ्लूइड की टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो हेलो, म्यूट हो गए तुम। यस सर। हम्म। तो म्यू डी डी यू एक्स डी वी एक्स अपॉन डी वाई। हम्म। सर इसमें और क्या बताऊं? ठीक है, मतलब बस तो दो डायरेक्शन समझ में आया ना, एक तो सरफेस का डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ऑफ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमेशा याद रखना जीवन भर। बट बहुत सारे फैकल्टी कैंडिडेट्स भी यहाँ पे जो इंटरव्यू देने आते हैं, दे ऑल्सो डोंट नो, दे डिड दिस ब्लंडर कि इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया एंड इट इज अ वेक्टर, और समटाइम्स दे से स्केलर आल्सो, बट इट्स अ टेंसर। ठीक है, तो अंशिका, अंशिका तुम बताओगी कुछ अलग, थोड़ा और बेटर वे में। अंशिका, समझ में आया तुम्हें कॉन्सेप्ट? हाँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। बोल रही हो क्या तुम कुछ अंशिका? एम आई ऑडिबल? अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी को भी कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो, एक बार और बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। राधिका? यस सर। समझ में आया? यस सर। एक बार बताओगे क्या समझ में आया? यस सर। हाँ बताओ एक बार। सर इसमें आपने एक फ्लूइड लिया है जिसकी कि जो कि मतलब यू उसको छोड़ वेलोसिटी। दो, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है टेंसर बताने के लिए। अगर तुम्हें टेंसर बताना है, मतलब व्हाट इज टेंसर, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगी? सर टू डायमेंशनल टेंसर जो है उसमें दो डायरेक्शन लेंगे हम, एक तो सरफेस का डायरेक्शन होगा और जो दूसरा डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, तो जो सरफेस के डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? सरफेस का डायरेक्शन जो कि सरफेस पे लग रहा हो किसी यूनिट नॉर्मल एरिया पे। नहीं 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 नहीं, सरफेस मतलब ये तो बेसिक्स में, मतलब वेक्टर में पढ़ा होगा ना, कि मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब मेरा ये सरफेस है, तो कोई भी सरफेस ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसका ये मेरा जो, मतलब मेरा जो एरिया, मतलब हमेशा तुम्हें पता है, तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं, बट जब हम एरिया वेक्टर डिनोट करते हैं, सो दैट एरिया वेक्टर डिपेंड्स ऑन द यूनिट नॉर्मल टू दैट सरफेस। यस सर। तो जो हमारा यूनिट नॉर्मल है, दैट इज डिफाइनिंग दैट सरफेस। तो सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा? वाई। वाई तो इसमें है, बट सरफेस का डायरेक्शन इज, अपवर्ड होगा। अब नहीं, नॉर्मल। जो भी बाहर की नॉर्मल, तरफ। नॉर्मल डायरेक्शन, हमेशा नॉर्मल, नॉर्मल समझ में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर। यस सर, नॉर्मल। यस सर। ठीक है, तो वहां से तुम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एंड उसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज तुम्हारा, दैट इज द वो यूनिट नॉर्मल जिस डायरेक्शन में होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस, राइट? यस सर। राधिका समझ में आया? यस सर। अंशिका समझ में आया? अंशिका तो बोल ही नहीं रही है। यस सर। ठीक है, तो अ, यस सर। तो स्ट्रेस टेंसर, ये तो एक एग्जांपल लिया था मैंने। अब मैं तुम्हें एक एक सॉर्ट ऑफ होमवर्क देता हूँ, कल को करके लाना, ठीक है? मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ जिसमें बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक्स वाई जी डायरेक्शन है, x1, x2, x3, और मेरा एक क्यूब है ये, एंड दिस इज वन ऑफ लाइक सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट जो मैं ले रहा हूँ।
किसी फ्लूइड मतलब कहीं फ्लूइड फ्लो हो रहा था, वहां पे मैंने एक एलिमेंट मान लिया, ठीक है, एक एलिमेंट ऐसे। ठीक है, मेरा ये यूनिट एलिमेंट है मेरे पास। देखो मैं तुम्हें सरफेसेस बता रहा हूँ, मेरे पास ये सरफेस है, मेरे पास ये सरफेस है, मतलब एक क्यूब है जिसके 6 सरफेस होंगे, 6 सरफेसेस, ठीक है। 6 सरफेस है मेरे पास टोटल, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 सरफेसेस है। और मैं बोल रहा हूँ हर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, लाइक फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑल द डायरेक्शन, फोर्सेस आर एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन in order to have this volume in equilibrium. It in so equilibrium maintain है, मतलब जितनी फोर्स इधर से लगी उतनी फोर्स इधर से लगी, जितनी फोर्स इधर से लगी उतनी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंड ये एक इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ठीक है। So there are 6 surfaces and there are forces in all the 3 direction. तो मैंने जो तुम्हें ये स्ट्रेस टेंसर बताया ना, दिस इज वन ऑफ द component, ठीक है। देयर कैन बी अ मैनी components, राइट। सो आई कैन इन अ जनरलाइज वे आई कैन से टी आई जे is equals to mu dui by dxj, where the is acting force is acting in a EI direction, or I can say ith direction, ith direction at a surface whose unit normal is in j direction, ठीक है। तो कल को कर बताना मुझे, विल डिस्कस अबाउट दिस। तो यहाँ पे तुम्हारे 6 सरफेसेस हैं, मतलब सरफेसेस आर डिफाइंड, मतलब हर सरफेस का एक नॉर्मल होगा, ठीक है। तो देर आर 6 सरफेसेस एंड तुम्हें बताना व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेस टेंसर। तो अगर मैं पूरा स्ट्रेस टेंसर ये है मेरा, तो देयर कैन बी अ डिफरेंट कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, देयर कैन बी T11 E1 E1, so this is in 1 direction plus T12 E1 E2। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। यू हैव टू टेल मी व्हाट ऑल कंपोनेंट्स आर देयर, कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्ट्रेस टेंसर एंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस, लाइक हाउ दे आर एक्टिंग फिजिकली, ठीक है। ये करके लाओगे ना? यस सर। ठीक है राधिका, सुयश, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये करके लाना, देन विल डिस्कस अबाउट ऑन टेंसर, ठीक है। टेंसर ये तुम्हारा डायरेक्टली मतलब ये समझ लोगे तो तुम्हारा मतलब डिफ्यूजन ये सब जितना भी है तुम्हारा, इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक concepts ऑफ हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मास ट्रांसफर एज वेल। एंड जो तुम्हारा फाइनल ईयर में कोर्स होगा ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, उसके लिए तुम्हारे लिए
पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा. एंड इवन इन like if you do internship and all, these concepts are important to understand if you are going towards the theoretical concept. ठीक है, तो मतलब फंडामेंटल ऑफ बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स इज इम्पोर्टेंट, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं कल. यस सर। किसी को कोई दिक्कत और कुछ?